Hello and good morning everyone. How are you all? I hope सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे बिल्कुल और सब बहुत excited होंगे safety measures के साथ स्कूल आने के लिए, right? So students, yesterday we were on chapter number 2 of economics. We have discussed how more job opportunities can be created in different sectors. Today we will discuss the two important sectors where people are engaged in working. These are organized and unorganized. Organized sector and unorganized sector. Have a look. Let us examine another way of classifying activities in the economy. This looks at the way people are employed. What are their conditions of work? What are their rules and regulations? Are there any rules and regulations basically, or that are followed as regards to their employment? Now, today we will basically discuss the working conditions of different people. Different peoples are working in different conditions. Some are very satisfied with their work environment, while others are very dissatisfied and frustrated. So we will discuss how different people are engaged in different economic activities and what is the sector of their work. Have a look. We will discuss the two stories. Number one of Kanta. Kanta works in an office. She attends her office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go to office on Sundays. This is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of work. यानी ये आपको एक सिचुएशन बता रहे हैं, कांता की सिचुएशन बहुत अच्छी है। वो क्या कर रही है, वो एक सिस्टमैटिक वर्किंग लाइफ जीती। उसकी मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 5:30 तक की ड्यूटी है। आफ्टर दैट शी इज फ्री and she gets regular salary. She gets 4 weekly holidays, 4 monthly holidays. Every week she gets a holiday, that is Sunday. Okay, plus she also gets provident fund. What is provident fund? It is a contribution or a saving which is made by boss as well as worker, and it is paid to the worker when he or she leaves the organization. ठीक है, सेविंग होती रहती है वर्कर के नाम से। डिटेल में आप इसको आगे पढ़ेंगे हायर स्टडीज। तो एक अच्छी बात है। और जब ज्वाइन किया था तो अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया गया था। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ वर्क है जहाँ चीजें सिस्टमैटिक चलती है। अब जरा देखिए आप कमल की स्टोरी। Kamal is Kanta's neighbor. He is a daily wage laborer in a nearby grocery shop. He goes to the shop at 7:30 in the morning and works till 8 p.m. in the evening. वो शॉप पे वर्क कर रहा है तो शॉप तो सुबह से रात तक खुलेगी तो उसको शॉप पे जाना भी पड़ेगा। आगे he gets no other allowances apart from his wages. He receives only his wages, right? He is not paid for the days he does not go to the work. Just जब वो नहीं गया तो उसको नहीं पेमेंट मिलेगा। He has therefore no leave or paid holiday. He do not enjoy any holiday benefits. Now, nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop. He can be asked to leave anytime by his employer. Yani, he was not given any appointment letter at the time of appointment, and he can be removed from job anytime the boss want to do so. Employer means the boss, ठीक है, जिसने काम पे रखा है, जो अपॉइंट कर रहा है, तो उसको कभी भी बॉस जो है वो काम से निकाल सकता है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आप देखिए कोविड-19 में जिन लोगों की जॉब सिक्योर्ड रह गई वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, और जिन लोगों की जॉब उनसे छीन ली गई वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आए। ठीक है, उनके पास कोई अपॉइंटमेंट, ये जनरल मैंने आपको बता दिया है कि जनरल ट्रेंड में हम ये चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए इन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। सी द डिफरेंस। Kanta works in organized sector. Organized sector covers those, अब ये 1 mark क्वेश्चन भी हो सकता है और इवन 3 marks में भी आ सकता है। Organized sector cover those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. They are registered by government and have to follow its rules and regulations which are given in various laws such as Factory Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, shop establishments, etc. This is called organized as it has some formal processes and procedures. Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own.
but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulation. Organized sector वो sector है जिसमें ऐसी organizations आ रही है जिनके यहाँ पे employment की regular terms है. These organizations are registered under government and they follow the different rules and regulations laid by the government. ठीक है, अलग अलग laws बने हुए हैं हमारी country में, ये सारे laws इनको follow करने पड़ते हैं. अब इनको ऑर्गेनाइज क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इनका सारा काम सिस्टमैटिक वे में होता है. नेक्स्ट, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने आप को गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर करवा लेते हैं. नाउ वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर है उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी. दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स. इनके ड्यूटी आवर्स फिक्स है, इतने बजे से इतने बजे तक की ड्यूटी है, दैट्स इट. उसके अलावा आपको कोई परेशान नहीं करेगा. आपका जो वर्किंग आवर है वो लिमिटेड है, वो डिसाइडेड है. आगे देखिए, इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर. कितनी बढ़िया बात है. ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर वर्कर को ज्यादा काम करना है तो वर्कर को ओवर टाइम भी करने का एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलेगा. They also get several other benefits from the employer. Employer is the person who appoints someone on job. What are these benefits? They get paid leave. Monthly एक paid leave होती है. Holidays के time पे payment होता है. Provident fund gratuity, ये retirement के time मिलने वाले benefits है. They are supposed to get medical benefits, and under the laws, the factory manager has to ensure facilities like drinking water and safe working environment. When they retire, these workers get pensions as well. जो गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज होते हैं उनकी बात कर लीजिए, प्राइवेट में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनकी बात कर लीजिए. ठीक है, तो उनको पेड लीव मिलती है, हॉलीडे के टाइम पेमेंट मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं. उनके लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन करना फैक्ट्री मैनेजर की ड्यूटी होती है. एंड व्हेन दीज वर्कर्स रिटायर तो इनको अच्छी पेंशन भी मिलती है. तो हर इंसान का ड्रीम होना चाहिए टू गेट अ जॉब इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर जॉब करनी है. आगे देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट, कमल वर्क्स इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट व्हिच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. छोटी छोटी शॉप्स पे आप जाते हैं ना, जहाँ लेबरर्स वर्क कर रहे होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. ठीक है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है. देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड. रूल्स तो है, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, बट फॉलो नहीं होते. जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर. It means people of unorganized sector gets low payment and even their payment is not regular. There is no provision for overtime, paid leave, holidays, leaves due to sickness, etc. It means these workers do not enjoy the benefits of paid leave. They do not enjoy the benefit of extra payment when they are working overtime. They do not enjoy the benefits of paid holidays. Employment is not secured. यहाँ पे secured नहीं है. People can be asked to leave without any reason. कभी भी काम से निकाला जा सकता है. When there is less work, such as during some seasons, some people may be asked to leave. ये कह रहे हैं जब सीजन नहीं है, जब वर्क नहीं है ज्यादा, तो ऐसे लोगों को काम छोड़ने के लिए भी कहा जा सकता है. मैंने अभी बताया था ना, कोविड में जिनको निकाल दिया गया. आगे, A lot also depends on the whims of the employer. Employer की इच्छा पे भी डिपेंड करता है. कोई वर्कर कह रहा है पेमेंट बढ़ा दो, तो एम्प्लॉयर उसको भी निकाल सकता है. This sector includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street or doing repair work. Similarly, farmers work on their own and hire laborers as and when they require. ये कह रहे हैं इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, जो कहीं एम्प्लॉयड है बिना रूल्स रेगुलेशंस वाली ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी, और जो अपने लेवल पे छोटा छोटा वर्क कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, बार्बर्स हो गए. ठीक है, इन सब की शॉप्स में जब आप जाते हो तो ये भी क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में केवल 7% वर्किंग पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पास वर्क कर रही है. बची हुई 93% पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही है. ठीक है, रिमेनिंग जो 93% पॉपुलेशन है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करती है. ये आपको याद रखना है. अब आगे देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अपने आप पता लगा सकते हो. आपकी स्कूल में जो टीचर है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क कर रहा है, बताइए. व्हाट डू यू फील? गिव मी आंसर्स इन चैट बॉक्स.
बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, करेक्ट आंसर्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के देखने हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज, ये देखिए परसेंटेज फॉर्म में है, ये आपको वर्किंग करनी है इस पे। अब देखो एक एक्स्ट्रा चीज बताती हूँ जो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है। इनिशियली गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट की जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं। 93% पॉपुलेशन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनको खींच के ऑर्गेनाइज सेक्टर तक लाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही डेवलप कर दिया जाए, क्यों ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे ही रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए जाए। तो देखिए क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर, but the employment opportunities in organized sector have been expanding very slow। ये बोल रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स बहुत बढ़िया है, बहुत सॉल्व है, बहुत सॉर्टेड है, बट लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप देखते हैं ना गवर्नमेंट सेक्टर में कितना एक्सेस कंपटीशन है, इन्हीं रीजंस की वजह से तो है। आगे देखिए, it is also common to find many organized sector enterprises in unorganized sector. They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow the laws that protect the laborers। ये कह रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर छुपे हुए हैं जो मोर देन अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स को हायर करके रखते हैं और जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से काम कर सकते हैं। बट गिव मी अ सेकेंड, हैव अ लुक एवरीवन, बीच में पीसी पे स्क्रीन बैक हो गई थी। तो क्या कह रहे हैं ये कि ऐसे लोग हैं जो खुद को अनऑर्गेनाइज सेक्टर शो करते हैं ताकि वो टैक्स पेमेंट से बच जाए और उनको लेबर लॉस को फॉलो न करना पड़े। ये तो हमने पढ़ लिया। As a result, a large number of workers are forced to enter unorganized sector jobs which pay a very low salary. They are often exploited and not paid a fair wage. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secured and have no other benefits। ये कह रहे हैं बहुत सारे वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे डिपेंड होना पड़ता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनकी जॉब्स प्रॉपर नहीं है, उनको पेमेंट प्रॉपर नहीं मिलती है, प्लस उनको किसी भी तरीके की जॉब सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे बता रखी है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बाद। आगे देखिए, Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. These workers are forced to take up the jobs in unorganized sector with low earnings. Hence, besides the need for more work, there is need for more protection and support of the workers in unorganized sector। ये कह रहे हैं 1990s के बाद से ही, क्योंकि हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स इनिशिएट किया था ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इनिशिएट की थी, तो तब से ही काफी वर्कर्स ऐसे हैं जिनको ऑर्गेनाइज सेक्टर को छोड़ के अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की तरफ आना पड़ा, ठीक है। लो अर्निंग्स के पीछे उनको आना पड़ा। तो ऐसे में गवर्नमेंट का एफर्ट ये होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो छोड़े और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जॉब प्रोटेक्शन। आगे देखिए, who are these vulnerable people who need protection? In the rural areas, unorganized sector mostly comprises of landless agricultural laborers, small and marginal farmers, sharecroppers, artisans such as weavers, blacksmiths, carpenters, goldsmiths, etc. Nearly 80% of rural households in India are in small and marginal farming category. These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credit, storage facilities and marketing outreach। ये बोल रहे हैं ऐसे कौन वल्नरेबल पीपल है जिनको गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन की नीड है। तो आपको बता दिया रूरल एरिया में अप्रॉक्स 80% हाउस होल्ड है जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में। इसके अलावा रूरल एरिया में कुछ शेयर क्रॉपर्स है जो किसी की लैंड पे काम करते हैं और बदले में उनको सैलरी या वेजेस की जगह सिर्फ थोड़ा सा शेयर मिल जाता है क्रॉप्स का। कुछ आर्टिशियंस हैं जैसे कि ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ वगैरह हो गए। इन सभी को गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन की जरूरत है। इन सबको क्रेडिट फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटी और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है। अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आता है देखिए,
In the urban areas, unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industries, casual workers in construction, trade and transport, etc. And those who work as street vendors, head load workers, garment makers, rag pickers, etc. अर्बन एरिया का बता दिया है, स्ट्रीट वेंडर हो गए, हेड लोड वर्कर्स हो गए, है ना, जो अपने सर पे सामान लोड करके घूमते हैं, गारमेंट मेकर्स, छोटे छोटे जो लोग हो गए वो सारे. Now, small scale industry also needs government support for procuring raw material and marketing of output. SSI यानी जो छोटे लेवल पे इंडस्ट्री वर्क कर रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनको भी गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत है. आगे, the casual workers in both rural and urban areas need to be protected. Casual worker पता है ना, डेली वेज वर्कर्स जो है, उनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है. आगे, we also find that majority of workers from scheduled castes, scheduled tribes and backward communities find themselves in unorganized sector. Besides getting the irregular and low paid work, these workers also face social discrimination. कुछ selected caste के लोगों की बात की भी है, ये लोग भी ऐसे हैं जिनको unorganized sector की जॉब पे ही डिपेंड होना पड़ता है और इन लोगों को irregular income के साथ social discrimination भी फेस करना पड़ता. हाँ, मैं नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि अब गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्शन देके बहुत सारी चीजें चेंज कर दी है. आगे देखिए, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर इज thus necessary for both economic and social development. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं उनको इकोनॉमिकली और सोशली दोनों वे से डेवलप करने के लिए इट इज नेसेसरी दैट दे शुड बी प्रोवाइडेड प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी एंड देयर job security along with job security proper income should be assured to these people. आगे देखिए, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर. हमने इन टर्म्स ऑफ जॉब पोजीशन पढ़ लिया, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. अब ओनरशिप के बेसिस पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर होते हैं. अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स असेट एंड इज रिस्पांसिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. किसकी ओनरशिप में असेट है और किसके पास ये ड्यूटी है कि सर्विसेज को डिलीवर करना है. ठीक है, आगे देखिए, इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज. बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल की सभी असेट्स किसकी ओनरशिप में है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओनरशिप, तो वो पब्लिक सेक्टर है. लेकिन मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूं, मैं कोठारी मेडिकल की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे असेट्स प्राइवेट ओनरशिप है. So in private sector, the ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individuals or companies. आगे देखिए, railways or post office is an example of public sector where companies like Tata Iron and Steel Company or Reliance Industries Limited are privately owned. गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी एग्जांपल दे दिया, जैसे कि रेलवे या फिर पोस्ट ऑफिस, और टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और रिलायंस, ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस के एग्जांपल देती है. आगे देखिए, एक्टिविटीज इन प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगा. टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी एंड दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनी. ये कह रहे हैं, इफ यू वांट टू एंजॉय द सर्विसेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर यू आर सपोज्ड टू गिव देम सम मनी. Right? The purpose of public sector is not just to earn profit. Government raise money through taxes and other ways to meet the expenses on services rendered by it. Modern day government spend on a whole range of activities. What are these activities? Why do government spend on such activities? Let's find out. ये रुक के find out करेंगे. उससे पहले समझिए क्या कहते हैं. ये कह रहे हैं, the government enterprises they do not work with the sole motive of maximizing profit. Their aim is to maximize social welfare. Their aim is to provide various types of services to the households and to the people of society who are in need. ठीक है, गवर्नमेंट मॉडर्न डेज में तो बहुत सारे एक्सपेंसेस कर रही है. क्यों कर रही है वो अभी सुनेंगे, उससे पहले आप दिमाग लगाइए. एक इम्पॉर्टेंट बात कि गवर्नमेंट वहीं एंटर करती है जहां नेसेसिटी होती है. आप देखिए, आपने गवर्नमेंट के अन्नपूर्णा योजना सुनी है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सरकारी भोजनालय चला सकती है. लेकिन क्या गवर्नमेंट का 5 स्टार रेस्टोरेंट देखा है? डेफिनेटली नहीं. आपने गवर्नमेंट को फ्री फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या गवर्नमेंट पिज्जा डिस्ट्रीब्यूट करती है? नो. तो गवर्नमेंट वहीं आएगी जहां नेसेसिटी होगी. ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज के केस में.
या फिर जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वहां भी गवर्नमेंट आ सकती है। अब क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है? देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय सोसाइटी एज अ होल बट which the private sector will not provide at reasonable cost. Why? Some of these need spending large sums of money, which is beyond the capacity of private sector. Also, collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy. Even if they do provide these things, they would charge a high rate for their use. ये कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में बनते हैं जो गवर्नमेंट को अपने अंडर में रखने होते हैं। क्यों? पहली चीज, प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इस पे एक्सपेंड करे। अगर होता भी है तो भी वो जब चीजें बनाएगी तो बहुत हाई रेट पे सेल आउट करेगी। प्लस पूरे जनरल पब्लिक से इतने बड़े लेवल पे पैसा कलेक्ट करना एक इजी टास्क नहीं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाए। एग्जाम्पल दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. Does government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone? तो चीजें सभी के लिए अवेलेबल करवाने के लिए गवर्नमेंट वहां पे स्पेंडिंग करती है। There are some activities which the government has to support. The private sector may not continue their production or business unless government encourages it. कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी है जहां काम तो प्राइवेट सेक्टर कर लेगी बट उनको गवर्नमेंट के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन मे पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मेनी इंडस्ट्रीज। Many units, especially the small scale units, might have to shut down. Government here steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford. Government has to bear the part of cost. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अगर हम कुछ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को जितनी प्रोड्यूसिंग कॉस्ट आ रही है उसी कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दे तो हो सकता है प्राइवेट सेक्टर अपने प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करे, है ना, प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। तो स्पेशली उसमें कौन सी इंडस्ट्रीज है? स्मॉल स्केल यूनिट्स है जो छोटे छोटे लेवल पे काम कर रही है। उनको अगर गवर्नमेंट ने ये सपोर्ट दे दिया तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। तो गवर्नमेंट कर भी रही है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स देखेंगे तो कंजप्शन पर्पज से अलग है और कमर्शियल पर्पज से अलग है पर यूनिट की जो कॉस्ट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट वो जो एक्सपेंस है ऊपर वाला वो बियर करती है। Similarly, the government in India buys wheat and rice from farmers at a fair price. This it stores in its godowns and sells at a lower price to consumers through ration shops. ये भी आपको पता है। गवर्नमेंट क्या करती है? फार्मर्स से राइस परचेज कर लेती है, व्हीट परचेज कर लेती है, फूड ग्रेन्स परचेज कर लेती है एक रीजनेबल प्राइस पे और फिर उसको अपने वेयर हाउसेज में स्टोर करती है और फिर क्या करती है? राशन शॉप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है। You have read about this in Food Security of Class 9. आपने पढ़ा है। The government has to bear some of the cost. In this way, the government supports both farmers and consumers. ये चीजें हायर स्टडीज में भी आएंगी। गवर्नमेंट क्या करती है? फार्मर्स को भी सपोर्ट कर देती है एक बढ़िया मार्केट देके और कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट कर देती है। राशन शॉप सुनी है ना आपने गवर्नमेंट की, बीपीएल कार्ड होल्डर्स को जहाँ पे किराने का सामान मिलता है, ग्रोसरी आइटम मिलता है। आगे देखिए, there are a large number of activities which are the primary responsibility of government. The government must spend on these. कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जहाँ गवर्नमेंट को खर्चा करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड फैसिलिटीज टू पीपल ऑफ द सोसाइटी। आपने क्लास 9 में पीपल एज अ रिसोर्स पढ़ा है, वहां पे आपने पढ़ा है कि हेल्थ और एजुकेशन दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप देख लीजिए, किसी भी जगह को ऑब्जर्व कर लीजिए, वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जरूर होगा, राइट? तो वही चीज यहाँ पे कह रही है। वी हैव टू डिस्कस सम ऑफ दीज इश्यूज इन we have to discuss मैंने इसलिए बोला क्योंकि we are still to discuss chapter number 1, right? Running proper schools and providing equality education, particularly elementary education, is the duty of government. India's size of illiterate population is one of the largest in the world. तो ये कह रहे हैं जब वन ऑफ द लार्जेस्ट इलिटरेट पॉपुलेशन है तो ऐसे में गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट क्या करे? प्रॉपर स्कूल्स रन करे और लोगों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। आगे देखिए, Similarly, we know that nearly half of India's children are malnourished and a quarter of them are critically ill. We have read about infant mortality rate. हम पढ़ेंगे because we haven't completed chapter 1 till yet.
So we will read about infant mortality rates, we will read about other important measures of health also. So government also need to pay attention to two aspects of human development. ठीक है, और भी बहुत सारे aspects पे ध्यान रखना है, such as availability of safe drinking water, providing house facility to poor people, providing them food and nutrition. It is also the duty of government to take care of the poorest and most ignored regions of the country to increase funding in such area. ये कह रहे हैं गवर्नमेंट का ये भी काम है कि कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वर्क नहीं कर रहा, उन एरियाज को गवर्नमेंट ध्यान दे, ठीक है, उन एरियाज पे भी गवर्नमेंट फोकस करे और उन एरिया के लोगों की नीड्स को गवर्नमेंट फुलफिल करे। सम अप करते हुए ये कह रहे हैं कि इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट वेज ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सम मीनिंगफुल ग्रुप्स. The first group we have discussed primary, secondary and tertiary sector, right? So have a look. One way of doing this is to examine whether the activity relate to primary, secondary or tertiary sector. The data for India for last 30 years shows that while goods and services produced in tertiary sector contribute most to the GDP, employment remains in the primary sector. ये कह रहे हैं हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा that most goods and services are produced in tertiary sector, but still most of the people are engaged in agricultural activities. आगे we have seen what can be done for increasing employment opportunities in a country, हमने पढ़ा है ये भी. फिर another classification is to consider whether people are working in organized or unorganized sector. अभी डिस्कस किया हमने. A person working in organized sector enjoys healthy job, right? But unorganized वाली unhealthy job होती है. आगे देखिए. Most of the people are working in unorganized sector and protection is necessary for them. We also looked at the difference between private and public activities and why is it important for public activities to focus on certain areas. ये हमने पढ़ी. अब आपके लिए कुछ exercises हैं, ठीक है, कुछ fill-ups हैं, 1 mark questions हैं, MCQs हैं और उसके बाद में आपके main ये question answers. तो ये सारी चीजें, इन सबके solutions I will be sending you. क्या करना है, कितना करना है, ये लिख के सेंड कर दूंगी, उसी अकॉर्डिंग आप अपने फेयर रजिस्टर में वर्क करें. I hope it is okay to everyone. Okay everyone, so we have completed the chapter number 2 of economics. 2 हो गया है, 3 हो रखा है. Now we will be starting with chapter number 1 of economics in our next class. Okay everyone, have a nice day, enjoy yourself, see you in the next